Okay, so let's start. So in previous class we studied about the reaction of aldehyde and ketone with ammonia derivative. Okay, and in this class we are going to study the oxidation reaction of aldehyde and ketone, which we started in the previous class, but because of time we did not complete it. So let's start oxidation of aldehyde and ketone. Oxidation reaction. Oxidation reaction of aldehyde and ketone. Okay, and this topic is very important for practical point of view also, because in practical you have some functional group as well. So testing of functional group can be done by these reactions which we are going to study right now. Okay, aldehyde and ketone can be distinguished. Okay, we can separate from aldehyde from ketone. दोनों को हम अलग अलग करके बता सकते हैं कि aldehyde and ketone है using these reactions. So let's see. So as we are talking about the oxidation, so first start with oxidation of aldehyde. So let me tell you, as I told you earlier, that reactivity of aldehyde is greater than ketone. Okay, aldehyde is more reactive than ketone, or more prompt for oxidation than ketone. So that's why weak oxidizing agent, strong oxidizing agent can also oxidize aldehyde, but weak oxidizing agent can also oxidize aldehyde. So aldehyde का oxidation weak भी कर सकते हैं, strong भी कर सकते हैं. ठीक है, तो basically अगर हम बात करते हैं यहाँ पर aldehyde की, तो by oxidation okay, by oxidation of aldehyde can be changed into carboxylic acid. Suppose we have aldehyde RCHO and it undergoes oxidation, then it will change into RCOOH. This is aldehyde, and this is carboxylic acid. ठीक है, एक aldehyde है और एक carboxylic acid है. So actually addition of oxygen is oxidation. So यहाँ oxygen का addition हो गया, that's why it is undergoing oxidation. Okay, but what type of substance are used for oxidation? They are called oxidizing agent. So as we discussed earlier that there are two types of oxidizing agent. अगर हम oxidizing agent की बात करते हैं, oxidizing agent, so there are two types of oxidizing agent. One is strong, another is weak oxidizing agent. ठीक है, in case of strong oxidizing agent, we have K2Cr2O7. okay, in acidic medium they are strong oxidizing agent. KMnO4 is also strong oxidizing agent in acidic medium. Okay, and HNO3 is also strong oxidizing agent, concentrated HNO3. And in case of weak oxidizing agent, so as I told you that कि यहाँ पर क्या है कि ये एल्डिहाइड काफी रिएक्टिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इजीली कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, दे आर टॉलेंट रीएजेंट. ओके, टॉलेंट रीएजेंट. ओके, Fehling solution and Benedict solution. So these are the substance which oxidize only aldehyde. Okay, which oxidize only aldehyde, not ketone. जो केवल aldehyde का ऑक्सीडेशन करते हैं, ketone का नहीं करते, और खुद का रिडक्शन हो जाता है. यहाँ पर ध्यान रखें, खुद का जो है वो रिडक्शन हो जाता है. तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इन ऑक्सीडेशन को कराएंगे. एक बार मैं इसको रख कर रहा हूँ. ओके, लेट्स सी. तो जैसा मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने पर तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा आपके पास में. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज में ले रहे हैं, तो पहले बात करें टॉलरेंट एजेंट की. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलेंट रीएजेंट. अब रिमेंबर वन थिंग, टॉलेंट रीएजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो मुझे बताइए टॉलेंट रीएजेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो इसको यूं भी पढ़ा जाता है कि रिडक्शन ऑफ टॉलेंट रीएजेंट, रिडक्शन
of toluene reagent by aldehyde. ओके, एल्डिहाइड टॉलरेंट रिएजेंट का रिडक्शन कर देगा और टॉलरेंट रिएजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा। अब नाउ लेट्स सी कि टॉलरेंट रिएजेंट होता क्या है। एक्चुअली टॉलरेंट रिएजेंट हो कुछ नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप सिल्वर नाइट्रेट में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड टॉलरेंट रिएजेंट। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेट्स सी, सपोज वी हैव एल्डिहाइड RCHO और यहां पर मैं टॉलरेंट रिएजेंट बना रहा हूं सिल्वर ammonium hydroxide. Okay, this is silver ammonium hydroxide and this is called toluene reagent. इसको हम toluene reagent कह रहे हैं. Okay, so here in this toluene reagent the oxidation state of silver is +1. Okay, silver की जो oxidation state है that is +1, ध्यान रखना। तो होगा क्या यहाँ पर, when they react actually this aldehyde change into carboxylic acid salt, it changes into RCOONH4. so this is ammonium salt of carboxylic acid. That means the aldehyde has changed into carboxylic acid. Okay, next thing is Ag, जो यहाँ पर Ag है हमारे पास, that is Ag plus, ठीक है, this Ag plus will change into Ag. Okay, तो यहाँ देखो इस पर +1 चार्ज है and it is neutral, there is no charge on it. तो चार्ज अगर +1 से 0 होता है that means हम क्या कहेंगे, क्या वो उसका रिडक्शन हुआ। तो यह Ag का तो रिडक्शन हो गया है और रिडक्शन होने से ये हमारे पास सॉलिड Ag है, तो सॉलिड Ag तो PPT की फॉर्म में आएगा, PPT, और इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर। This is called silver mirror. There will be a silver layer, okay, which will sit on the test tube. So that's why this layer will be called silver mirror. And the next thing which we will get, और जो आगे हमें दूसरी चीज मिलेगी, that is ammonia. और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। तो ये तीन चीजें हमारे पास में यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी, एक वाटर और बनेगा यहाँ पर, तो वी कैन ऑल्सो फॉर्म वाटर will also form. Okay, and this test is called toluene reagent test. इसे हम कहते हैं toluene reagent test भी कहते हैं, reagent test, and it is also called silver mirror test. Okay, it is also called silver mirror test. So remember this thing, ठीक है, दोनों इसी के नाम है, toluene reagent test and silver mirror test, both are same. ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, 12th क्लास प्रैक्टिकल में जब आप फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं तो आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाता है एंड यू हैव टू आस्क टू फाइंड आउट व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इट। सो दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म व्हेन यू ऐड सम टॉलरेंट रिएजेंट इनटू इट। आप उसमें टॉलरेंट रिएजेंट ऐड करते हैं एंड देन यू बॉइल फॉर सम टाइम, थोड़ी देर उसको बॉइल करते हैं, हीट करते हैं। तो आफ्टर हीटिंग इट फॉर सम टाइम there appearance of silver layer on the test tube, there is a appearance of silver layer on the test tube, जिसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं। और इसकी फॉर्मेशन जब ही होती है जब हमारे पास वो एल्डिहाइड हो, बिकॉज एल्डिहाइड ही इसका रिडक्शन कर सकता है। यहाँ पर एल्डिहाइड ने Ag+ को रिड्यूस किया है किसमें, Ag के अंदर। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि रिडक्शन ऑफ टॉलरेंट रीजन, यहाँ पर टॉलरेंट रीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। एंड दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। दूसरा कौन कौन नहीं देता है, एक बार समझना, कीटोन, ठीक है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। दूसरा आपके पास अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ओके, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी टेस्ट नहीं देता है। थोड़ा इसको डाउन कर देता हूं, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो बोथ दीज कंपाउंड, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, बोथ हैव द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, बट दे डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है, दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो ये चीज ध्यान रखना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही ये टेस्ट देता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज दैट इज रिडक्शन ऑफ फेरिंग सॉल्यूशन, कह सकते हैं आप इसको, रिडक्शन ऑफ फेरिंग सॉल्यूशन, रिडक्शन
ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं और यूं भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन से हम एल्डिहाइड का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि ये फेलिंग सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। एक्चुअली हमारे पास में ना दो तरह का फेलिंग सॉल्यूशन होता है। वन इज, लिख देता हूं, फेलिंग सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। वन इज फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड सेकंड इज फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज नथिंग बट कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर में कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसे आप फेलिंग सॉल्यूशन ए कहते हैं। यानी ब्लू कलर का जो बॉटल मिलेगा आपको लैब में जिसमें ब्लू सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है कॉपर सल्फेट का, दैट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन ए। एंड एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या होता है, एक रॉशेल सॉल्ट प्लस NaOH, इन दो चीजों का मिक्सचर होता है। रॉशेल सॉल्ट आपने पहली बार सुना होगा। एक्चुअली रॉशेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इट इज अ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट एक कंपाउंड होता है, वो मिक्स होता है और NaOH होता है। इसकी वजह से हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी रिएक्शन के अंदर, क्योंकि वो यूज में नहीं आएगा। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान होनी चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन जो बनता है, इट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, और दोनों को मिक्स करके यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसको कंबाइन में हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास देखो ये कॉपर सल्फेट है, सपोज कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये है फ्रॉम ए, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए से। और फेलिंग सॉल्यूशन बी में आपके पास NaOH है, ठीक है, NaOH फ्रॉम बी। तो जब आप ए और बी को मिक्स करते हैं तो आपके पास बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस Na2SO4, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना। तो दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करेगा फेलिंग सॉल्यूशन को रिएक्शन में। तो अब हम इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं। सपोज वी हैव एल्डिहाइड CHO, दिस इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में हम फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का मिक्सचर डाल रहे हैं, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कहां से आया, वी नो दैट कॉपर हाइड्रोक्साइड फ्रॉम फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी से हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड आया। अब जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड की, और साथ में ध्यान रखें इसमें NaOH भी पार्टिसिपेट करता है, NaOH आल्सो टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन, ओके। एंड रिएक्टिंग विद NaOH एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो ये आपके पास में एल्डिहाइड है, इट चेंजेस इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस तरह से इट फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इसमें, दैट इज Cu2O एंड H2O, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है वो ध्यान देना, आप देखो यहां पर Cu के ऊपर जो चार्ज है दैट इज +2, ठीक है। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में, क्यूप्रिक, इट इज इन क्यूप्रिक फॉर्म। नाउ हियर व्हाट इज द चार्ज ऑन Cu, क्योंकि आप देख सकते हो ऑक्सीजन पर बेटा O2 माइनस होता है, तो दो Cu अगर उसको बैलेंस कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों पर मिला करके +2 है, दैट मीन्स 1 कॉपर कैरी +1 चार्ज, ठीक है। दिस इज क्यूप्रस, तो दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड। और एक्चुअली क्यूप्रस ऑक्साइड का जो रेड कलर, इसका कलर जो होता है ना बेटा, इट इज रेड इन कलर, ध्यान रखना, रेड कलर होता है। तो होता क्या है, अब आप टेस्ट कैसे करेंगे, ये तो रिएक्शन की बात होगी। अब आपने एल्डिहाइड दिया और एल्डिहाइड में आपने फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करके डाल दिया, थोड़ा NaOH डाला, और जैसे ही आपने इन तीनों को ऐड किया वैसे ही आपके पास में जो कलर है सॉल्यूशन का वो बिल्कुल रेड हो गया, और ब्लड रेड हो जाता है बिल्कुल ना। इफ इट बिकम्स ब्लड रेड, दैट मीन्स ऑब्वियसली इन टेस्ट ट्यूब वी हैव एल्डिहाइड प्रेजेंट, तो वहां पर हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट हो गया, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। दूसरी बात जो मैंने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है ये भी समझिए। यहाँ एल्डिहाइड जो है इट हैज चेंज इनटू
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज कॉपर, ठीक है, जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन में Cu2+ है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फेलिंग सॉल्यूशन इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड एल्डिहाइड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। इसमें भी आपको सेम चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है हमारे पास में, ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये आपके पास में केवल किसका रिडक्शन करेगा, एल्डिहाइड का, ठीक है। अगर एल्डिहाइड है इट विल बी रिड्यूस इफ यू हैव कीटोन, it will not be reduced if you have aromatic aldehyde, it will not be reduced, ठीक है। तो ये केवल रिडक्शन किसका करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है। तो ये चीज ध्यान रखनी बेटा, कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं, खासकर सीबीएसई बोर्ड में तो आते ही आते हैं। तो इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखें, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो यूजिंग दिस रिएक्शन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर 3, रिडक्शन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग, एक्चुअली आप ये समझे कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये हमारे पास बनता किससे है, एक तो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट हमारे पास होता है जिसमें हम लोग सिट्रेट आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको रखते हैं। लेकिन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है हमारे पास दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे ये आपके पास एल्डिहाइड है और आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है फ्रॉम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में से जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और जब इसको आप हीट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये एल्डिहाइड इस ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, इट विल गेन द ऑक्सीजन एंड इट विल चेंज इनटू RCOOH। तो ये तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, इट हैज अंडरगोन ऑक्सीडेशन। बट इफ वी टॉक अबाउट Cu2O, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इज +2 एंड नाउ इट हैज चेंज इनटू Cu2O, ये भी Cu2O में चेंज हो गया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है एंड इट इज रेड इन कलर, रेड कलर आपको पीपीटी बन जाएगा, ठीक है, ये पीपीटी मिल गया रेड कलर का। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। तो in chemistry lab what you do, first you take some aldehyde in a test tube and you put some Benedict solution into it. So as you include or add the Benedict solution, the aldehyde turn red and it instantly turn red because of the formation of Cu2O, ठीक है, Cu2O की फॉर्मेशन की वजह से वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एल्डिहाइड हैज अंडरगोन ऑक्सीडेशन, okay, because it is changing into carboxylic acid, and here Cu2O, cupric oxide +2 oxidation is changing into cuprous oxide, it is undergoing reduction, इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। So that's how there is a oxidation of Benedict solution। तो Benedict solution में भी ये ध्यान रखें ये एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए, सॉरी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए काम में आता है, और एल्डिहाइड इनका इजीली क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, ठीक है। So these are the 3 compounds which are used for oxidation of aldehyde and these all 3 are very weak oxidizing agents, ठीक है। What 3? Fehling solution and Tollens reagent and Benedict solution. These 3 solutions we have used for oxidation of aldehyde and these 3 solutions are weak oxidizing agents, ठीक है, these are weak oxidizing agents। चलिए let's move on, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Then oxidation of ketone. Let's talk about oxidation of ketone. Oxidation of ketone. Oxidation of ketone. So as we discussed
as we discussed, whether it is aldehyde or ketone, both can be changed into carboxylic acid by oxidation. Okay, so when we are using ketone, suppose we have this ketone CH3 acetone, which we call it is acetone, and it is undergoing oxidation using strong oxidizing agent like K2Cr2O7 in acidic medium. Actually, ketone cannot be oxidized by weak oxidizing agent. So every time we require a strong oxidizing agent like K2Cr2O7, KMnO4 or SNO3. And using these strong oxidizing agents, it can be changed into carboxylic acid. But remember one thing, whenever there is oxidation of ketone, this bond breakage, एक bond इस तरह से break होता है, and one carboxylic acid of 2 carbon and one carboxylic acid of 1 carbon is formed. So like this, CH3 COOH and then HCOOH. So thus two types of carboxylic acid will be formed. तो यहाँ पर दो तरह के carboxylic acid आपके पास बनेंगे, ठीक है, एक तो 2 कार्बन से और एक 1 कार्बन से आपके पास बनेगा. But the problem arises when there is a possibility of two different type of compounds. देखिए, अब यहाँ मैं एक केस ले रहा हूँ, इस केस को कंसीडर करें, अच्छा इंपोर्टेंट केस है, CH3 CH2 and CH2O CH3. Okay, so here it is undergoing oxidation. इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं concentrated HNO3 से, ठीक है, and we require oxygen to change it into. Okay, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि देखो यहाँ तो इन फर्स्ट केस देयर वाज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगर मैं बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो भी ये कंपाउंड बनेगा, अगर बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो भी वो कंपाउंड बनेगा, बिकॉज द बॉन्ड विल ब्रेक द कीटोन इनटू 2 कार्बन एंड 1 कार्बन इन बोथ द केसेस. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है. इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड फ्रॉम हियर देन द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, 2 कार्बन और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर दोनों केस में मतलब आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हाउ कैन यू फाइंड आउट. पहले मैं दोनों पॉसिबिलिटी जो एक ही बताते हैं मेजर प्रोडक्ट. तो एक्चुअली इसके लिए ना एक साइंटिस्ट थे, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग नेम था, हिज नेम वाज पॉपॉफ. ओके, हिज नेम वाज Popov, and he gave a rule, ठीक है, and that rule was called Popov's rule. उस रूल को Popov's rule कहा गया, और उस रूल में उन्होंने क्या कहा, in case of unsymmetrical ketone, he said in case of unsymmetrical ketone, the point of cleavage is such that the keto group stays with smaller alkyl group preferentially. जो कीटो ग्रुप है वो उस वहां से मतलब ये ब्रेकेज होगा कि जो कीटो ग्रुप है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप के पास चला जाए, क्योंकि आप देखो ये वाला छोटा एल्काइल ग्रुप है, ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो ये कीटो ग्रुप है. तो कीटो ग्रुप कहाँ जाएगा, क्लीवेज कहाँ से हो, तो क्लीवेज उस डायरेक्शन से हो जहां पर कि आपके पास में जो कीटो ग्रुप है वो छोटे वाले ग्रुप की तरफ चला जाए, ठीक है. तो यानी एक 2 कार्बन से और एक 3 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ हमारे पास बनेगा CH3 CH2 COOH and CH3 COOH. So this is propanoic acid and this is ethanoic acid. Okay, so these are the major products. तो यहाँ इसमें Popov rule लगेगा. I think Popov rule is clear to you. Okay, कि cleavage इस तरह से होगा, cleavage will be done in such a way then the keto group will go with small alkyl group. Keto group will go with small alkyl group after the cleavage. Okay, this law was called Popov rule. इसको Popov rule कहा गया. चलिए अब आगे चलते हैं. Let's move on. Yes, and the next is very important reaction. ठीक है, बहुत important reaction है. और ये बेटा आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, खास करके एग्जाम आइडिया जैसे बुक में, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आपको इस तरह के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, तो इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है. ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम. लेट्स मूव ऑन. एंड द नेक्स्ट इज यस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन.
an aldehyde by haloform reaction. चलो oxidation of aldehyde and ketone by haloform reaction. ठीक है, तो पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन है. ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते. ठीक है, तो पहले तो एक कंडीशन ध्यान रखें, ओनली दोज कंपाउंड give haloform reaction which contain देखो या तो उसमें ये वाला ग्रुप हो CH3CO और CH3COH. ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रुप होना चाहिए. अगर ये ग्रुप है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा. ठीक है, अब ये ग्रुप कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, लेट्स सी. तो हम यहाँ एक बार देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा. लेट्स सी, सपोज वी हैव CH3CO CH3 ketone, we have CH3COH aldehyde, okay, we have CH3CO CH2 CH3, this is also ketone and this is also aldehyde. ये तो आ चुका. Okay, and okay, so these are the, और alcohol भी है CH3OH and CH3CH OH CH2 CH3, okay, and one more CH3CHOH. okay, तो देखिए ये सारे मैंने जो कंपाउंड बनाए हैं, these are the compounds which can give haloform reaction easily, जो आसानी से haloform reaction देते हैं. Why they are giving haloform reaction, you can see, जैसा मैंने कहा था कि ये दो ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, these two groups should be there in compound. तो यहाँ पर देखो ये ग्रुप है आपके पास, कीटोनिक ग्रुप है, this group. ठीक है, ये सेम ग्रुप फर्स्ट वाला ग्रुप हो गया. इसमें देखिए एल्कोहलिक ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. तो अगर ये ग्रुप है तो वो आपके पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी ग्रुप है तो नहीं देगा. तो चलिए देखते हैं अपन एक बार एक रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन का, हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो इन हेलोफॉर्म रिएक्शन स्टार्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन. हम इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन कह रहे हैं. हेलोफॉर्म में मतलब कई आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो सकती है. So we are taking example of iodoform reaction. Okay. In case of iodoform reaction, suppose we have NaOH react with I2. When NaOH react with I2, it forms NaOI, then NaI, and then H2. ठीक है. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है फर्स्ट स्टेप में, that is called sodium hypoiodide. Okay, this compound is called sodium hypoiodide. Remember this, the name of compound. It is not sodium hypoiodide, D नहीं है बेटा, TE है, ध्यान रखें, iodide. Okay, so now what will happen, this sodium hypoiodide can react with all of these compounds. इन सब से रिएक्शन कर सकता है. हम इसमें से कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं एल्डिहाइड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड से हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं. ठीक है, तो व्हेन इट रिएक्ट विद एल्डिहाइड NaOI, so how does it react aldehyde? Actually in aldehyde we have 3 alpha, we have 3 beta, alpha ही काउंट होगा, we have 3 alpha hydrogen here. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 alpha हाइड्रोजन है. तो these hydrogen will be displaced by this iodine. ये आयोडीन इसको डिस्प्लेस कर सकता है. यहाँ 3 NaOH ले रहे हैं, ये यहाँ आकर के इसको डिस्प्लेस करेंगे. तो यहाँ 3 अगर मैं आयोडीन लगा देता हूँ तो इट विल फॉर्म CI3COH.
ठीक है। एक्चुअली व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, इसका नाम था एसिटल्डिहाइड, इट इज एसिटल्डिहाइड। नाउ द फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म इज आइडो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसे हम आइडोफॉर्म भी कहते हैं, नहीं आइडोफॉर्म नहीं बोलेंगे, सॉरी, आयोडेल, इट इज कॉल्ड आयोडेल, इसको आयोडेल कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये दूसरा स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास में ये CI3CHO की फॉर्मेशन हुई है, इट विल रिएक्ट विद NaOH, ये NaOH से रिएक्शन करेगा। और अच्छा, यहाँ NaOH भी तो फॉर्म हुआ है अपने पास, 3 NaOH की फॉर्मेशन हुई है। इन नेक्स्ट स्टेप इट विल रिएक्ट विद NaOH लाइक दिस, NaOH, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CI3COH, ओके। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो आप देखिए ये हाइड्रोजन जो है, दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन विद CH3 एंड इट विल फॉर्म CH3 प्लस एंड देन HCOONA, तो ये जो कंपाउंड बना है आपके पास, देखो आप, CH3 इज कॉल्ड आइडोफॉर्म, तो हमने आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन कर दी है। इट इज जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, CHBr3, इट इज ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, तो सिमिलरली CHI3 इज आइडोफॉर्म। so this iodoform is yellow in color, ओके, ये येलो कलर का पीपीटी बनाता है, ठीक है। और अगर येलो पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन्स आइडोफॉर्म इज फॉर्म, कि वहां पर आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब ये रिएक्शन करानी कैसे, देखो एक्चुअली ये भी एल्डिहाइड का एक कीटोन का टेस्ट है। यूजिंग दिस रिएक्शन यू कैन चेक एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन सबको आप चेक कर सकते हैं। हाउ वी कैन चेक इट, जैसे मैंने कहा कि बिगनिंग में आपको क्या करना है, आयोडीन को NaOH में डाल के डिसॉल्व करना है और उसको हल्का सा हीट कर लेना है, तो आपके पास सोडियम हाइपोआयोडाइड बन जाएगा। फिर जैसे ही आप सोडियम हाइपोआयोडाइड को एल्डिहाइड के अंदर ऐड करेंगे, तो एल्डिहाइड विल चेंज इट्स कलर एंड टर्न इनटू येलो पीपीटी, जो येलो पीपीटी की फॉर्मेशन कर देगा। तो येलो पीपीटी बनाने का मतलब आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई है, तो यहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ आइडोफॉर्म, तो यहाँ पर हम आइडोफॉर्म की प्रेजेंस को पहचान सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू हाउ आइडोफॉर्म इज फॉर्म, कि आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब मैं बात करूंगा कि बेटा आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। तो एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूं, लेट्स सी। तो जैसा मैंने कहा कि एल्डिहाइड हो जरूरी नहीं कि वो आइडोफॉर्म रिएक्शन दे, या कीटोन हो जरूरी नहीं है आइडोफॉर्म रिएक्शन दे, तो वहां पर आपको देखना है कि उसमें जो ये वाले ग्रुप है तो वो ये रिएक्शन देगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर सपोज वी हैव दिस एल्डिहाइड, ओके, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट एल्डिहाइड, इसको भी देखें आप, दिस इज आल्सो एल्डिहाइड, ओके। एंड सिमिलरली कीटोन, benzophenol, we can take example of benzophenol, this is benzophenol and this is 3 degree, this is 3 degree alcohol, okay। तो अब जैसा मैंने कहा था कि यहाँ आप इनको आइडेंटिफाई करें कि क्या ये वाला ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप देखो इसमें भी नहीं है CH3CO ग्रुप, बिकॉज फिनाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो CO तो है बट CH3 नहीं है यहाँ पर ये आपके पास 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप है, दैट मीन्स ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। हियर वी बोथ साइड वी हैव फिनाइल ग्रुप, ये भी नहीं देगा। और यहाँ पर भी सेम एल्कोहल तो है, बट एल्कोहल मैंने कहा कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए आपके पास कि CH3COH, ठीक है, ये वाला ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये वाला ग्रुप इसमें कहाँ है, ठीक है, इसमें तीनों तरफ से आपके पास CH3 लगे हुए, ठीक है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो आई थिंक यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देता है और कौन सा कंपाउंड नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए, अब बच्चे क्या जल्दी लीव हो जाते हैं और अटेंडेंस लेते समय बहुत संख्या कम हो जाती है। चलिए मैं एक बार अटेंडेंस ही ले लूँ, जस्ट ओके, यस।
So this is okay. One more thing, beta. Have you let me recording off कर दूं मैं.